लेडीज एंड जेंटलमैन, हेलो, क्या हाल है सबके। बैक विद पॉपुलर डिमांड है सदफ हमारे साथ है। मैं हूँ महावश अजाज। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं मुझे, और स्पॉटिफाई पे सुन भी सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, होप यू कैन हियर मी एंड यू होप यू विल एंजॉय दिस कॉन्वर्सेशन दैट आई एम अबाउट टू हैव विद सदफ हैदर, हु इज अ जर्नलिस्ट, हु इज अ फिल्म एंड TV drama critic, and she's been, talking about Pakistani dramas for a very long time. You all know her. And for those of you who already know me, no introduction needed. So let's get into it. Sadaf, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? Walaikum salam. Good to be back. We Yes, had so much going on in our family lives. We couldn't do family anything, but lives. finally dragged each other to this And like meeting. the time difference, and you're traveling and I'm Yeah. traveling. So even when we want to do, so we've tried doing spaces sometimes, but वो Mm. मजा नहीं है जो YouTube में है ना, और Spotify में भी. Now we're on Spotify, so we can, listen better. So we're Uh, going to give some opinions and we're going to be very valuable annoying opinions. people. Yes, annoying people with our opinions, which is something we're going to talk about. We have a lot on our plate, so we'll try to make it fun and engaging as much as possible, but then also look at some of the stuff that I don't think a lot of other people are talking about. हमारे पास आज एजेंडा में है जेंटलमैन, जट पत्तों का बन, जफा. जफा has been a big conversation point, Sadaf, and Mm. stan culture and celebrity culture and what it means to be a celebrity stan today in 2024. So, Sadaf, should we start with gentleman or should we start with Jaffa? जट पत्तों का बन से स्टार्ट करते हैं मेरे ख्याल से जरा. It's Mm. it's a serious, heavy drama. So let's get that, talking about that out of the way. What do you say? I'm not sure it's a serious, heavy drama, Yeah, but you know. they used a lot of comedy. I think the writer Mustafa Afridi, whom I'm a huge fan of, I'm sure you are too. Yes. He's used a lot of comedy to, he's kind of used the Farat Ishtiyaq formula जो उन्होंने उडारी में इस्तेमाल किया था कि put in a lot of quirky characters, a lot of this kind of stuff, and then people like to see the serious stuff. It's palatable, huh? So I think people are enjoying that serial. It has a kind of YKS feel. Ye Mera Dil. It does have a slight feeling, I think, right? And the aesthetic is kind of copied from that, or maybe inspired from that. पता नहीं मुझे लग रहा है, but obviously story is different. But आपको कैसे लगी? आई थिंक मुझे जो उसके हैवीनेस है या जो हैवी कैरेक्टर्स हैं, मुझे उनसे काफी मतलब, मुझे कभी कभी इट्स टू मच टू बेयर. समटाइम्स आई फील लाइक इट्स जस्ट समथिंग विच I need the comedy and I need the light-heartedness. Like I really liked that little tappa between Sajal and Tanveer Saab, who plays her father, Tanveer Hussain. के सबसे अच्छा मेरा अब्बा. And Sajal is so good with that. जैसे आपको वो याद भी होगा, एक आंगन में भी उसका एक था कि तुम्हारी बुआ से कहती तुम्हारे मजार पे चढ़ाऊंगी और गाना गाऊंगी. So she's so good with this extempore and this, very क्या कहूंगी मैं, जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ी म्यूजिकल सॉर्ट ऑफ कॉमेडी टेंडेंसी है उसके अंदर, जो कि मुझे लगता है कि इतनी एक्सप्लोर नहीं होती. और मुझे शायद इसी वजह से ये बहुत सीरियस लग रहा है, क्योंकि मैं उसके कैरेक्टर पे बहुत फोकस कर रही हूँ, और उसका कैरेक्टर इतना लाइट नहीं है जितना कि हो सकता है. ऑल्दो एक अनइंटेंशनल कॉमेडी है उसके भाइयों के साथ, उसके वो जो मौलवी, वो जो मुअज्जिन है उसके साथ, और जो दूसरे भी वो कैरेक्टर. देखिए, अब वी कैन नॉट वॉच. वो भाई इतने जैसे कमीने किस्म के हैं, सही बात है. और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हम देख ही नहीं सकते इस टाइप सुन नहीं सकते ऐसी कहानियां. सही बात है, सही बात है. लेकिन मुझे जो उसका थोड़ा सा डायलॉग लगा, वो मुझे थोड़ा सा वैसा लगा कि ऐसे कौन बोलता है कि जब वो उसको तकरीर करने के लिए बुलाते हैं तो वो कहती है कि जी मुझे MBBS डॉक्टर चाहिए गांव के अंदर. आर पीपल रियली दैट ऑल्ट्रुइस्टिक? इज दिस अ फ्लॉ इन द वे दैट दिस पर्टिकुलर सीन वाज कंट्राइव्ड? व्हाट डू यू थिंक? थोड़ा सा मुझे हो रहा है, लेकिन दिस इज अ जॉनर इन इटसेल्फ. ये जो मैसेज फिल्म्स हैं, मैसेज ओरिएंटेड, हाँ, राइट, दिस इज अ जॉनर, और उसमें दिखाया जाता है इन अ वेरी टू डायमेंशनल वे, बिकॉज इट इज अ मैसेज, इट इज नॉट एन ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन होता है कि यू लुक एट रियलिटी और आप कहते हो अच्छा ये भी होता है वो भी होता है. यू लुक एट इट एट फ्लॉज भी आप दिखाते हैं सिचुएशन का, एंड दैट विल कनेक्ट अस टू जफा इन अ मिनट, राइट? बिकॉज सरप्राइजिंगली जफा एंड दिस ड्रामा पत्तों का बन, दे आर आल्सो मैसेज ओरिएंटेड, एंड आई थिंक दे आर, वो नहीं है एक वो जो एक गुड कजिन एक बैड कजिन वाली बात है ना. तो
I know talking about both dramas, right? So हम्म I'm really enjoying Zarpaton Ka One, but I will have to say that Sajal's character, which he is playing brilliantly, is a little bit too much of a goody two shoes. हम्म And I'm sure there are girls out there in the world that are like that, but few and far between, I'll say. Most हम्म people have personalities, they have, कुछ गलती भी करते हैं, कुछ सही भी करते हैं. But हम लोग समटाइम्स मैं सोचती हूँ कि एक थोड़ी सी डिससर्विस कर रहे होते हैं पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी कि जी हम्म, सिर्फ डॉक्टर बनना है. हाँ नंबर वन वो मुझे बड़ी चिढ़ होती है, राइट. हाँ. वो डॉक्टर और वो एक जो आइडियल लड़की है ना वो ही कर रही है सब कुछ. बाकी जब जो कीड़े मगर मतलब मकोड़े उसके इधर साथ उधर तो हो घूम रहा है रहे हैं. ना, मतलब हम ये दिखा रहे हैं ना ड्रामे में, सॉरी कि मैं बात एंड में रह गई. मैं कह रही हूँ वो तो दिखा रहे हैं कि वही एक लड़की है, वो हमने वो उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखा है कि वो मतलब सब्जियां भी वो कर रही है, वो चारा भी दे रही है भैंसों को, और बड़ा उन्होंने अच्छा शूट किया है उसको, बहुत अच्छे से वो पूरी चीज उन्होंने बनाई है रियलिस्टिकली कि वो. एंड देयर आर कपल ऑफ शॉट्स व्हिच आर लाइक सीन्स व्हिच आर इन वन टेक. वो खेतों से आती है, वो चारा कंधे पे उठाती है, सो देयर इज नो चीटिंग इन दैट सीन. सो मेहनत तो नजर आ रही है, लेकिन मेरा जो थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कंटेंशन है ऐसे ड्रामों के बारे में, जो कि उडारी में हमें नहीं दिखता था. आई थिंक दैट्स व्हाई उडारी सच अ ब्रिलियंट सक्सेस, बिकॉज उडारी में वो प्रीची पार्ट जो था वो मिनिमल था, और जो एक्चुअल स्टोरी थी और जो मोमेंट्स थे वो ज्यादा थे. वो कहानी थी जिसमें कहीं मैसेज था. अब मैसेज होता है और फिर उसके आसपास कहानी होती है, तो वो चीज मुझे लगता है कि वो फॉर्मूला थोड़ा सा नहीं वर्क करता. आपको ज्यादा अच्छा तब लगता है जब आप एक नेचुरली कहानी एक देख रहे होते हैं और बीच में आपको एक बड़े स्ट्रांग मोमेंट पे आपको एक कैरेक्टर, आपको एक बात बताता है कि यार नहीं, एक्चुअली में मुझे जरूरत थी वो ये थी, जिससे मेरी लाइफ बेहतर हो सकती थी, जिससे मैं ये प्रॉब्लम शायद अवॉइड कर सकती थी. तो मुझे लगता है कि वो गर्द पत्तों का वन में वो जरा हैवी हैंडेडनेस ज्यादा है मैसेजिंग की, लेकिन ऑब्वियसली ओवरऑल इट्स सच अ गुड वॉच स्टिल डिस्पाइट ऑल ऑफ ये तो एक Well, the stars are रिव्यू so है मेरे good. पास. Stars are so good. I mean, हम्म and this I say, I mean, I remember Mahira Khan को इतनी ट्रोलिंग हुई थी कि तुम्हारा पंजाबी एक्सेंट नहीं है. अब हम्म, मान न मान आप लोग हम पंजाबी तो सज्जल का कहीं से पंजाबी एक्सेंट नहीं है, हाँ लेकिन काफी साफ she's उर्दू got बोल रही है वो, with it. हाँ. She doesn't look like a Punjabi girl and she's not really at times acting like one. लेकिन वो उसने कर लिया, गुजारा चल गया. Public loves it and it's getting ratings, which is good for her. But हम्म I'm going to say that is a slight thing, कि हम्म भाई I think Sajal should have realized कि भाई this is how a Punjabi girl is. But उन्होंने काम वैसे बाकी की उनकी एक्टिंग of course as usual कमाल की, प्यारी भी लग रही है, साफ हम्म, जो भागता है. तो हाँ. you're rooting for that thing कि कब वो क्या दोनों नौफिल है मिलेंगे, मुझे भी इसी पुराना. का इंतजार है, हाँ, Yeah, हमजा और I am सजल के. waiting for them to meet. Yeah, so that's good. And Nofil's track is really good too. I like that हम्म. because नहीं, that नॉवेल का kind of ट्रैक thing. अच्छा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ड्रैग्ड आउट लग रहा है. मुझे लग रहा है कि अच्छा. वो जल्दी पहुंचा देना चाहिए था, बिकॉज आई थिंक इट्स व्हाट 6-7 एपिसोड्स पे हम पहुंच गए, अब जाके वो Hmm. पहुंचा है या पहुंच पहुंच गया है मेरा ख्याल से अब. और ये संडे है तो आज आएगा, तो हम देखेंगे कि इस दफा क्या होता है. जब तक आप लोग ये वीडियो देखेंगे होपफुली तब तक नौफिल जगह पे पहुंच गया होगा. तो मुझे उनका बड़ा इंतजार है, बिकॉज सीइंग सजल एंड हमजा विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग. Hmm. बड़ी बड़ी मजेदार पेयरिंग चूज की I है. think they be very good. And also, one last point on this drama, I like the way Mustafa Afridi has given her four terrible brothers, but he's हम्म given her other nice male role models, aspas, right? हम्म हम्म Who are helpful to her, who treat her as a daughter. कि वो पंजाब में होता है ना सबकी बेटियां सांझी हैं, तो हम्म the loving way they're trying to get put together a motorbike for her, all हम्म. kinds of things. They're trying to help her. So I like that. I mean, I think that's very balanced writing. So well done to Mustafa Afridi. No, And he's a good overall, writer. He's a yeah, very good writer. overall. But I feel है मुस्तफा साहब की जो डायलॉग है ना वो बड़े पावरफुल है. Mm, और वो जब लिखते हैं इस तरह के कुछ मोमेंट्स ऐसे इतने कमाल के लिखते हैं कि वो हमेशा याद रहने वाले मोमेंट्स होते हैं. स्क्रीन प्ले मुझे mm, लगता है कहीं कहीं वो या तो प्रेशर में आ जाते हैं कि चैनल उनको बोलता है कैसे करो, और उनके दिल में होता है कि नहीं मैं ऐसे नहीं करूंगा, फिर जो बादल नखास्ता उनके अंदर से जो सीन निकलता है ना वो अच्छा नहीं होता. मुझे लगता है क्योंकि एज अ राइटर मुझे भी ये फील होता है कि अगर मुझसे कहा जाएगा कि नहीं तुम ये सीन डालो कहीं, तो मैं कहूंगी कि अच्छा बन तो नहीं रहा, अब कहीं से कुछ तोड़ मड़ोड़ के निकालती हूँ मैं. ऐसा होता है कुछ राइटर्स, दे आर गॉड्स ऑफ देयर ओन क्राफ्ट.
कुछ लोग होते हैं ऐसे। तो ये है, बट यस आई थिंक ओवरऑल आई माय कंक्लूडिंग पॉइंट फॉर जरूरत पत्तों का बन इज ऑल्सो द सेम। एंड आई थिंक किसी ने पॉइंट आउट भी किया था, आई थिंक आफिया ब्लॉग्स पॉइंटेड आउट के ओएसटी टाइम से रिलीज नहीं करता हम किसी ड्रामे का, और तमीज से रिलीज नहीं करते। जो जो जितने मल्टीपल ओएसटीज होते हैं वो तो बिल्कुल ही रिलीज नहीं करते वो। तो ये मुझे बड़ा, मेरी भी शिकायत है हम टीवी वालों से कि भाई आप जरा वक्त पे तमीज से जो ओएसटी है वो निकाल दें, बता दें, ताकि आवाम भी इंजॉय करे। और इसी तरह जफा के ऊपर आ जाते हैं, या जेंटलमैन पे बात करें, या किस पे बात करें, आप बताइए। I like to talk about Jaffa because it connects to this, and then we can go to gentleman. Jaffa ये है कि because it's very similar. You got two girls, right? Both good girls. मैं नहीं ये कह रही कि वो दूसरी लड़की ऐसी है। अच्छा, वो दोनों को I think it's a we have been told, okay, as a parent, we have been told डायलॉग हर करण जौहर मूवी और ये जितनी भी मूवीज और पॉप कल्चर है, ट्रस्ट योर चिल्ड्रन, ट्रस्ट योर चिल्ड्रन। वो आपको ऐसे मायूस नहीं करेंगे, वो पढ़ाई करेंगे, वो हार्वर्ड जाएंगे, वो ये राइट डिसीजंस इफ यू वो मेरे टाइप की लड़की है, शी वांट्स टू हैव फन, वो कॉलेज का लाइफ एंजॉय कर रही है, एंड शी इज ओपनली, व्हिच इज अमेजिंग पार्ट इज शी इज ओपनली डेटिंग अ गाय, राइट। और वो पूरे कॉलेज को इस बात का पता है, उस वो इतनी माशाल्लाह ना डर है, दैट इज व्हाट मी। और हर आई मीन इतनी ना डर है कि उसको अपने रात को घर बुला लेती है। देन शी इज लाइक एट सम मेहंदी पार्टी, तो वो जी उसके साथ जाती है। हाँ, समीरा फजल ने वेरी क्लेवरली शी हैज जैसे कट आउट दीबू's कैरेक्टर, शी हैज जैसे मार्क्ड इट आउट वेरी क्लेवर। शुरू में ऐसे लगता है दीबू बड़ी भोली बच्ची है, अब भी भोली है, राइट, बट यू सी दैट शी इज अ डेयर डेविल एज वेल। वो नहीं, मेरे कराची के फ्रेंड्स है, मेरे हस्बैंड के दोस्त ना, तो किसी से पूछेंगे कोई बात तो वो कहेंगे वो भाभी नहीं, वो बहुत डेंजर मैन है, और मैं कहूंगी दीपू जो है ना वो डेंजर मैन है। I'm not sure that's Karachi slang, right? Yeah. तो मुझे पटाखा है, पटाखा पूरी। Yeah, he is a danger man. I'm saying you. Danger man, हाँ. So anyway, she is a danger man. She does not उसको कोई किसी consequences की समझ नहीं. She has been protected all her life, and is what a lot of our children, whether they're in the diaspora or they're in Pakistan, एक certain जो elite class के बच्चे हैं, वो इसी टाइप की kind of westernized सी जिंदगी गुजारते हैं, और एक ना पता चलता है नहीं तुम westernized नहीं हो, तुम पाकिस्तानी, right? So she does these things, and I can understand it, that why her father is upset, क्योंकि अपनी तरफ से तो पेरेंट्स ने सब कुछ अच्छा किया है, उन्होंने उनको बंद नहीं किया, इतनी पाबंदियां नहीं लगाई, they have been kind to her, उसकी एजुकेशन के ऊपर कोई खर्चा नहीं उन्होंने छोड़ा, and they've been inspired by Dr. Zara. So I mean, आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि एक तो जाहिर है आप आगे जाके देखते हैं कि वो उसकी फेट जाती किस तरफ है। मतलब ऑब्वियसली उस्मान मुख्तार का जो किरदार है वो एक पॉजिटिव लाइट में हम देख रहे हैं, तो क्लियरली एज एन ऑडियंस हम रूट कर रहे हैं कि भाई वो बेवकूफी छोड़े और वो ये अच्छा वाला लड़का है जो कि खुद थोड़ा एम्बिवेलेंट है शादी के मामले में। जो ओएसटी था उसमें भी कहीं दिखता है कि शी विल इवेंचुअली वार्म अप टू हिम। I'm in the beginning I wasn't rooting for that. I was rooting for Usman Mukhtar and her to be friends rather than lovers. नहीं, लेकिन जैसे मेरा इस जो आपने पॉइंट रेस किया ना अबाउट द पेरेंटिंग एंड व्हाट पाकिस्तानी पेरेंट्स आर लाइक, इसमें मैं एक और बात करना चाहूंगी जो कि आई थिंक पहले भी मैं कर चुकी हूँ अपनी हमारी किसी कॉन्वर्जेशन में या वैसे भी, कि पाकिस्तानी ड्रामों में ना हम बहुत सारी चीजें नहीं दिखाते। हमें नेटफ्लिक्स होता तो हमको एक्सप्लिसिट सा सीन दिखाते कि भाई लड़का लड़की इस हालत में पकड़े गए, तो वो तो पाकिस्तान में क्योंकि में दिखाना होता है, और ये एक यूनिवर्सल ऑडियंसेस हमारी देख रही होती हैं, यूट्यूब पे है और 8 बजे का शो होता है। तो मुझे लगता है कि जैसे एक तो सबटेक्स्ट है इसमें कि बाप जो है उसने कोई बहुत ही क्वेश्चनेबल सिचुएशन में देखा है बेटी को कि वो इतना रैशली बेटी को पुश कर रहा है कि शादी करो शादी करो शादी करो। और दूसरी चीज मुझे ये लगती है कि ये इतना अनरियलिस्टिक इसलिए नहीं है क्योंकि क्या होता है कि हम देखते हैं, हम आजादियां देते हैं बेटियों को सारा कुछ, तो कभी कभी पेरेंट्स फादर्स स्पेशली उनको ये होता है कि अच्छा रिश्ता है तो कर दो, मतलब क्यों इंतजार करना है, क्या कर लेना है, पढ़ाई बाद में करा लेंगे या शादी की बात कर लेना,
वो सही नहीं कह रही मैं उसको कि ये बहुत आइडियल सिचुएशन है, लेकिन मुझे उसके बाप की चीज इतनी ऑफ नहीं लग रही। मुझे जो चीज वो लग रही है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है जफा में, आई डोंट हैव वेरी मेनी क्रिटिसिज्म सो फार फॉर जफा, आई एक्चुअली डोंट हैव एनी। एक्चुअली जो मैं अच्छा लगता है मैं वो बताना चाह रही हूँ कि जफा के अंदर बहुत अच्छी चीज ये है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ रेड फ्लैग्स है, ये मैं अपने रिव्यू में भी इस बारे में बात कर चुकी हूँ कि जो रेड हम्म फ्लैग का कॉन्सेप्ट है ना, वो एक्सप्लेन किया है समीरा फजल ने, स्पेल आउट करके दिया है, हमारी ऑडियंस स्पून फीडिंग की आदि है। और हम लोग तो देखे ना, हम हम्म लोग थोड़ी लर्नेड ऑडियंस हैं, हम लोग थोड़ी सी समझदार लोग हैं, औरतें हैं, बड़ी उम्र की औरतें हैं सॉरी, विद ड्यू अपॉलॉजीज, कि मतलब हमने एक थोड़ा बहुत जिंदगी का जो वक्त देख लिया, उसमें अंदाजा है कि रेड फ्लैग क्या होता है। आप सोचे ना, ये ड्रामे 16-17 साल की लड़कियां भी देख रही हैं, 20-22 साल की लड़कियां लड़के देख रहे हैं, फैमिलीज देख रही हैं, जिनको जिनको वो लिटरेसी नहीं है अबाउट व्हाट इज अ रेड फ्लैग। हमें जहन में हम्म आता है कि हाँ यार, कोई मतलब ऐसी चीजों को जरा जहन में रखना चाहिए, लेकिन एक्चुअली रेड फ्लैग क्या है हम नहीं समझ पाते। और उसमें जो उसने जारा के किरदार में और मुहिब के जो फैमिली का जो डायनामिक उन्होंने दिखाया है, कि देखो इस तरह की चीजें इग्नोर करने वाली नहीं होती, थोड़ी नौकरों पे चीखना, बात बात पे उखड़ जाना, बेतुकी बातों पे गुस्सा करना, हम्म। और आउटबर्स्ट होना, ऐसे जैसे वो सिग्नल पे गाड़ी चला रहा होता है। और नहीं, और वो जो शीशा तोड़ा था उसने, शीशा तोड़ा था जी। दैट वाज द हाँ, बिगेस्ट रेड that फ्लैग। was, yeah, which is what the episode, the recent one I saw ended at. So I हम्म feel like ये बहुत अच्छे से उस राइटर ने और डायरेक्टर ने भी, दानिश नवाज को भी फुल क्रेडिट जाता है इस पूरे, जिसको जिस तरह हम्म उन्होंने एग्जीक्यूट किया है। मतलब वो जो घर है उसमें इतने बड़े मजे से उन्होंने मावरा का शॉट लिया है फ्रॉम द डिस्टेंस, where she sees from very far that the dadi is screaming at the or angry at the knocker. So all the मतलब props to the cast and the director and the writer, because बहुत अच्छे से उन्होंने ये पूरा जो एक कहानी लेके जिस तरह ये चल रहे हैं। हम्म सिमिलरली आपने ये देखा ना कि कोई विलन नहीं है, कोई इतना ऑब्वियस विलन नहीं है। वो जो माँ बाप हैं, उस बच्ची के, दीबू के माँ बाप जो हैं, वो अच्छा ही सोच रहे हैं। दीबू भी कोई अपने हद तक कोई इतनी गलत भी नहीं सोच रही, बिकॉज छोटी बच्ची है, मोहब्बत हो गई उसको एक लड़के से, अब उस लड़के का कोई फ्यूचर नहीं है, वो ये नहीं देख रही है, या है भी तो वो नहीं देख रही है, और इतना तो कोई भी नहीं देख सकता। सो मेरे ख्याल से ये सारी बातें ना बड़ा अच्छा डिस्कशन पॉइंट है, और इट मेक्स यू थिंक अबाउट हाउ मैरिजेस गो एंड व्हाट फैमिलीज कैन डू, क्योंकि हमने इस तरह के भी ड्रामे देखे हैं कि लड़कियां राइट। किसी को पसंद करती थी, माँ बाप ने जबरदस्ती शादी नहीं की, एक बड़ी उम्र के या एक गलत मनमाइल को ही देख लें, मनमाइल को देख लें कि क्या हुआ था जो उसकी मन्नू की शादी गौहर रशीद से करती थी, क्योंकि दैट लड़का वाज नोबडी, सल्लू वाज नो, राइट। तो वो भी एक कहानी है, और ये भी एक कहानी है कि कहीं कहीं रास्ते सही निकल जाते हैं, माँ बाप के फैसले सही होते हैं, और कहीं कहीं माँ बाप के फैसले इतने सही नहीं भी होते, माँ बाप नहीं देख पाते। I think that in the diaspora particularly हम लोग फेस कर रहे हैं ये सब। हमारा हम्म एडेड ये होता है कि बिकॉज वी आर इन द डायस्पोरा, हमें डर होता है कि बच्चे जो है नॉन मुस्लिम से शादी ना कर लें। सो हम्म, इट बिकम अ ट्रेंड के बच्चे जो है पढ़ रहे होते हैं और वो कहेंगे माँ बाप को हमने एक दूसरे को पसंद कर लिया। ठीक एंड है। दिस इज वेरी रिलीजियस हाउस होल्ड, नॉट हम्म, मॉडर्न वंस। हाँ लड़की ठीक ये है, फेयर इनफ। वो ऐसे। तो नाउ द ट्रेंड हैज बीन दिस दैट हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे हुआ। तो मैंने पता किया, मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? वेल वो लड़का अभी मेडिकल स्कूल में इन पाकिस्तान, द हम्म पेरेंट्स सेड नो कि हम्म अभी तो वो पढ़ रहा है तो देखेंगे ये कैसी लड़की ये पीछे पड़ गई है। इन इन अमेरिका द पेरेंट्स वर ग्रेटफुल कि इसने मुसलमान और अच्छी फैमिली की लड़की पसंद कर दी है, लेट्स डू इट। सो बोथ पेरेंट्स आर पेइंग हम्म for them to have a married life. And हम्म now after 3-4 years the boy has done medical school, वो residency कर रहा है और वो पढ़ रही है। हम्म, So they are very flexible on these kind of things because they know the natija, so they do हाँ, support their children। वो ये नहीं हम्म होता। And I still don't understand why। um, I can understand his anger हम्म, कि वो एक फीलिंग होती है when you are betrayed, when your disappointed, child हाँ, betrays he's you। just disappointed in his daughter, yeah। Not just disappointed, he is simmering with anger at betrayal कि मैंने तुम्हें इतनी फ्रीडम और मोहब्बत दी। एंड दीबू को भी तो देखो ना, बेवकूफाना डायलॉग। मुझे लगता है मैं गैरों में रही हूँ सारी उम्र, मैं तो भाग जाऊंगी, मैं तो ये कर लूंगी, मैं तो वो उसको पता नहीं है, वो इतनी भोली है और इस माँ बाप का ही कसूर है। दे हाँ, हैव wrapped her up in cotton wool. She has no idea कि जिंदगी के what रियल the लाइफ real world is like, क्या। हाँ वो, बट सदफ ये तो होता है ना, मतलब इस उम्र की लड़कियां, वो क्या 18 साल की होगी, 18-19 साल की लड़की दिखाई है हम्म सहर का जो किरदार है, तो
Yeah, but if you, this is the problem with Pakistan, there's no community service. बच्चे learn नहीं करते कि what real life is like, right? You just अपने घर के दायरे एक्चुअली में जो ना. फैमिली सिस्टम है पाकिस्तान का, या जिस तरह हमारे यहाँ कम्युनिटी ऑटोमेटिकली बिल्ट है ना, मिलने वाले आ रहे हैं, दोस्त की बहन के, मामू के, चाचे के बहू के भी, यू नो, जो भी बहू की फैमिली, जो भी, तो वो भाई की बीवी, तो चाचा की बीवी, तो मामू की बीवी, तो वो एक्सटेंडेड रिश्तेदार जितने होते हैं ना, क्योंकि मैं जब भी पाकिस्तान जाती हूँ मुझे लगता है, और मैं अपने बच्चों के लिए भी सोचती हूँ, अपने लिए भी सोचती हूँ, कि मेरे लिए एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है ह्यूमन इंटरेक्शन का, ऑब्वियसली। और जो एक जिस तरह हम लोगों से डील करते हैं, हम जिस तरह लोगों से बात करते हैं, वहां पे एक तो फर्क है। यूएई में, मिडिल ईस्ट में, या इवन यूएस, यूरोप वगैरह में जो हम लाइफ जीते हैं, वो डिफरेंट होती हैं। आपकी बहुत सारी रिलेशनशिप्स ट्रांजैक्शनल होती हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि कुछ, जैसे मिडिल ईस्ट में तो ये बहुत होता है ना कि पता नहीं ये रहेंगे नहीं रहेंगे, ट्रांजिएंट है बहुत, बहुत हद तक एक लेवल की जिंदगी ट्रांजिएंट है। वैसे अब तो, वैसे कुछ रिलेशनशिप आपके 20-20 साल, 30-30 साल भी चलते हैं, लेकिन जो फैमिली लाइफ है पाकिस्तान में एज एक्सपैट्स जब हम देखते हैं, तो वो चीज हमें थोड़ी सी बेहतर लगती है। और जो कम्युनिटी की बात करिए, मुझे लगता है फैमिली से वो कम्युनिटी मिल तो जाती है, लेकिन जो गधा होता है वो गधा ही रहता है। तो बहुत सारे लोग वहां बैठ के भी ये बंड मार रहे हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ भी, मतलब आउट ऑफ द कंट्री। There is a strong trend amongst the diaspora, particularly in America, कि वो कहते हैं, and this doesn't have to be wealthy people, but there's a trend कि अगर उन्होंने, this is वैल्यूज मीट करनी चाहिए आपके। if the children have decided to do something halal, right, you are not to stop them. We get lectures on it at the mosque. अगर उन्होंने शादी का फैसला कर लिया है, तो you are there to support. और ये जो, I mean, I got dialogues from people, हम लोग सुनाते हैं उनको ना, बंदे से, हाय अल्लाह ये हो गया, हम कहते हैं ये पैसे अल्लाह ने किस लिए दी, right? Support your children, support their dream, and you'll see how grateful they will be in towards the end. So anyway, that's one perspective, but I can understand a lot of people are demonizing the father. मैं जेबू की जो कैरेक्टर दिखाई है, जेबू तो ऐसे है जैसे अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब होता है, ये लड़की कुछ कर सकती है। दीबू, sorry, and she, I mean, look, you meet someone in university, public places है, किसी से भी आप बात करते हैं, she is caring, वो इतनी daring है, during her ढोलकी or whatever, she's gone out alone with this guy, अंधेरों में मोटर बाइकों में ऊपर घूम फिर रही है, चट्टें खा, right? वो पाकिस्तान का माहौल ऐसा है नहीं, इतना भी, मतलब इस तरह की फैमिलीज में तो नहीं होता ऐसा, जहाँ जरा थोड़ा ट्रेडिशनल जैसा होता है। And then she invited him to the house. Obviously, there's a subtext to it, right? We can't say it, but you know, yeah. और ये भी तो है ना सदफ, देखें जैसे फैमिली पे भी तो बहुत फर्क होता है। पाकिस्तान में हर तरह का स्पेक्ट्रम है फैमिलीज का, तो पाकिस्तान में ऐसी फैमिलीज भी हैं जहाँ इन चीजों को बिल्कुल बुरा नहीं समझा जाता, बल्कि इनकरेज किया जाता है कि हाँ बेटा, कोई मोहब्बत है, तुम्हारा कोई है जानने वाला, तो बता दो, हम कर देंगे, ऐसा भी होता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जैसे मुझे लगता है, जो मैं दीबू की फैमिली को देख के सोचती हूँ कि मेरे जानने वाले थे, जब उनको पता चला कि ये लड़की जो है वो इस तरह कहीं बातचीत कर रही है किसी से भी, दे डिड नॉट इवन बॉदर एक्सप्लोरिंग कि ये लड़का इस काबिल है नहीं है, कौन है क्या है, वो दे जस्ट सेड ओके, she's not going to go out anywhere, she's not going to do anything. ये भी गलत है, ये गलत है। मैं आपको बता, लेकिन गलत सही तो अभी हम 1 मिनट के लिए अगर साइड पर रखें, ये बात करें कि हर तरह की फैमिलीज होती हैं। कहीं पेरेंट्स बुला के पूछते भी, अच्छा बेटा तुम्हें पसंद है, हमें ये बात अच्छी नहीं लगी कि तुमने हमसे छुपाई है, तुम चुप चुप किसी लड़के से बात करती हो, लेकिन अच्छा ओके, लेट्स सी what this person is doing, yeah, if that person is even good for you, because our opinion also matters at the end of the day. But so it's like, I think that based on what you rightly said regarding Dibu's father, is that he felt a sense of betrayal, कि तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा, मैंने तुम्हें आजादी दी, तुमने मेरा ट्रस्ट, therefore now I'm he's very angry. Yeah, he's very angry. Repressed anger है ना, you can see that, you can see he's disappointed, he's angry, he's frustrated with her, so you can see that. So but then overall, Sadaf, I would say that Jaffa is my concluding remark for Jaffa would be, I don't know if you want to add more things, but my concluding remark for Jaffa would be that it's great chemistry by all the actors. It's very good writing, very clever direction, smart, snippy, and it's just you don't get bored, because up to it's a flawless product. Yeah, it's a pretty flawless product for now. Yes. Smeera Fazal, and I think Smeera Fazal is one of our brilliant writers. She really goes to the heart of things. वो
डरती नहीं है, शर्माती नहीं है कि हाँ, वरना किसी और ड्रामे में होना था तो डीबू ने बिल्कुल एक फिशर को चाटा तो खाना ही था। हाँ, तो यहाँ वो चालाक लड़की होती, राइट, इवल लोमड़ी। या हाँ। एंड आल्सो और आप ये भी देखें ना कि हमारे हाँ, एक्टर्स भी इसमें कितना कमाल का काम कर रहे हैं कि जो oh, देव और मावरा का जो डायनामिक है वो बड़ा डेंजरस डायनामिक है। right, ही कैन नॉट कम ऑफ एज अ कम्प्लीटली लून, शी कैन नॉट बी टोटली क्या कर रहे हो ये तुम। सिमिलरली उस्मान, ही हैज टू बी लाइकेबल while also being a bit of a mm, curmudgeon, you know, like mm. but then also not creepy, not weird. So I think अच्छा, all of them, Seher also is doing such a fab job. there's another thing. I got a few comments that which I wanted to close on Jaffa with about age gaps. Now, I want to remind girls out there, right? A guy who, one of the reasons Deepu's romance is going to fail with Moise is because Moise and his mother are not ready for Moise's marriage, right? Moise's mother probably thinks of Deepu as some kind of floozy. You know, इतनी तेज, क्योंकि वो अपने जनरेशन के बारे में सोच रही है, इतनी तेज लड़की। अभी तो पसंद है उसे, अभी तो उसे दीपू बड़ी पसंद है। Yeah, so that girl is a little bit fast and she strapped my son. और मैंने तो अपने बेटे को बड़ा पढ़ाना था, उसने तो बड़ा कुछ करना था, तो ये लड़की कहाँ से आ गई है, right? Some mothers do feel like that. I mean, she may have at the back of her mind कोई खाला की बेटी या somewhere that she wanted her son to go, because she and her son have a good dynamic, by the way. Have you noticed they talk to each other? उनकी communication, there's zulm तो नहीं हो रहा वहाँ। नहीं, और it will be, that's what I'm saying, it's such a good writing that you're interested. अच्छा कहाँ जाएगा, what is going to happen, कैसे मूव करेगा ये फॉरवर्ड ना। तो मुझे तो बड़ा खैर आई थिंक people say कि हम उम्र से शादी करनी चाहिए, हम उम्र जो है ना is not always ready to marry. And that's why Azal say लोग married slightly older men. I understand women find them dominating and they're a different generation, etc. But why people marry older men is if you want to live a financially stable life. The man has to be a bit stable. वरना फिर लड़की की वाट लग जाती है ना फिर। Right. So I think that saying that anything over 10 years old, you know, you have to look at the situation. It's you know, there's this immediate reaction that 10 साल बड़ा है. And I'm going like somebody even wrote ke, who will demand sex on the first night. And my God, people have fantasies, right? So no. So I mean, let's move to Gentleman, and let's talk about what is going on with Gentleman right now, and then we'll talk about definitely because it's also connected to stan culture. Yeah, so Gentleman के ऊपर बात कर लेते हैं, written by Khalilur Kamar Saab and directed by Haitham Hussain, one of our favorite directors. And we have obviously favorite actor Humayun Saeed, and obviously a lot of great other actors as well. You know, Adnan Siddiqui, Yumna Zaidi, Khalid Anam Saab, so Saqib Sameer, lot of great actors, lot of talented people, Sohai and all are there. So what's your take on Gentleman so far? And then I'll tell you mine. Well, I'm loving it. It's a little 1970s for me. I think it's going to be, it's one of those dramas that is going to be, we are going to understand it as it rolls out. It's a slow roll out. अभी तक मुझे उसका ना सर पैर वो समझ नहीं आ रहा. You know, okay, where are we heading for? What are we going to? Because I think, you know, but I have a fair idea. Okay? Fair idea that Faris jitna bhi acha hai, he is the corruption. And जो हमारे मुन्ना भाई जो है वो उनमें जितनी भी खामियां हैं वो actually quite sincere है, particularly in the matter of love. Yes. So I think that is Khalilur Rahman Kamar's kind of USP. वो भी भाई है, वो भी पूरे मतलब डॉन है, वो भी अपने लेवल के, अपनी करियर उसके रेंज में वो भी डॉन ही है. हाँ. I'm enjoying it, but I have to say the rollout of the story is a little slow, right? But I think the way Haitham has shot it and the way he presented it is brilliant. But I wish it was 2 episodes a week because we need that much. Spread faster. Okay.
Okay. Yeah, I think I saw you say that also on Twitter, Mm-hmm. X, whatever you call it. Yeah. So my take on Gentleman is that initially I was obviously I'm always blown away by Humayun. I think he's fabulous, Mm-hmm. and he's got such massive star power that he convinces you of Khalil Rahman's absurd heroes. Like, and that's the Mm-hmm. same thing that Hamza did when he did Pyare Afzal. And obviously, it's not that Khalil Saab doesn't write well. It's not that at all. It's just that sometimes his hero and his heroines have motivations which are I don't know, they are above Quirky, human. quirky. That kind of क्वालिटी भी है बट वो एक रिलेटेबल चीज से ऊपर चला जाता है, ये मुझे mm, लगता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे उनकी फीमेल प्रोटैगनिस्ट से भी यही इशू होता है कि जैसे पंजाब नहीं जाऊंगी में उन्होंने दिखाया था कि लड़की कहती है कि अपनी भैंस से मेरे नाम करो वरना फिर मैं इसके साथ चली जाऊंगी, वो जो असफर का किरदार होता है। तो आई फाउंड दैट वेरी ऑड। फिर मेरे पास तुमों से भी मुझे यही इशू था, हालांकि सब कहते हैं कि ये एक रियल स्टोरी थी कि भाई वो एक औरत थी उसने पैसों की वजह से छोड़ दिया, आई एम श्योर होते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि किरदार को जैसे उमेरा अहमद से जो मुझे मेल उनके प्रोटैगनिस्ट से जो मुझे प्रॉब्लम होती है, मुझे लगता है कि दोनों क्योंकि दोनों इतने अच्छे राइटर्स हैं तो दोनों अपने प्रोटैगनिस्ट में ना फुल्ली कन्विंस्ड होते हैं और फुल्ली उसको देते हैं जस्टिफिकेशन कि तुम क्यों कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। खलील साहब अपने मर्द को देते हैं पूरी पूरी जस्टिफिकेशन, और जन्नत से आगे में अगर आप उसको देखेंगी कुबरा के किरदार को या इवन रमशा के किरदार को तो वो फुल्ली बहुत अच्छे से राउंड करती है हुमैरा mm, हुमैरा उसको। लेकिन जब वो ऑपोजिट जेंडर का जब लिखती हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जब आता है ऑपोजिट जेंडर का, जैसे खलील साहब ने जरनाब के किरदार में लिखा, मेविश के किरदार में लिखा लिखा लंदन नहीं जा पंजाब नहीं जाऊंगी मैं, और हुमैरा ने जन्नत से आगे की एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उसमें मुझे लगता है वो कहीं मार खा जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जेंटलमैन में जरनाब का जो किरदार है वो क्यों इतनी पेट्रियाटिक है, उसकी जो मोटिवेशंस हैं, वो हर बंदा तो इस तरह नहीं अपना करियर दाव पे लगा के एकदम खड़ा हो जाता है, कोई ना कोई उसकी लाइफ की कोई ऐसी या तो उसको कोई बैक स्टोरी ऐसी दे देते या उसको कोई एक उसको कोई डायलॉग में ही दे देते, लेकिन थोड़ा सा उसको बताते क्योंकि हर दफा हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं। फिर रिसेंटली अभी उसने उन्होंने डायलॉग बोला यमुना ने कि मुझे उसकी आंखों और उसके उसके लहजे में या पता नहीं कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही कि मुझे उस पर यकीन है इकबाल मुन्ना पे कि वो अच्छा आदमी है, विच इज आई एम नॉट सेइंग कि अच्छा आदमी नहीं है या यमुना का जो ये डायलॉग है ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपको उसको थोड़ा सा कहीं और बैक स्टोरी कोई एक मोमेंट ऐसा देना चाहिए था जिसमें उसको ये yeah, a चीज justifying moment. A जस्टिफाइंग मोमेंट देना चाहिए था, जस्टिफाइंग बैक स्टोरी देनी चाहिए थी जो खलील साहब नहीं देते। अब अगेन तो इसलिए सबसे मेरे ख्याल से जो वीकेस्ट लिंक है इस वक्त जेंटलमैन में किरदारों का वो जरनाब के किरदार का है। जाहिर mm, अहमद का किरदार का प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ही इज अ सोशल क्लाइंबर, ही इज एन अपॉर्चुनिस्ट, यू कैन सी इट द वे दैट ही टॉक्स टू द दैट अदर लेडी सोहाय का जो किरदार है। बल्कि और मैं Suhai is very much in command. सोहाय इज अच्छा Doing खलील really साहब राइट्स well, दीज कैरेक्टर्स वेरी वेल, है ना? he writes these characters very well. That cheating, conniving, horrible woman, he gives her very good depth, very good depth. So I mean, I don't know if it's subconscious or whatever, but I think that he writes, Khalil Saab writes bholi ladkiyan very badly, one but he dimensionally. strong women jo, you know, I remember in Manjali, he one scene I told you before we discussed this. Faris Shafi or Mahwash Ajaz, and she asked him to eat a piece of glass. I mean, I was like, hello. अच्छा ऐसा भी होता है, but there you go. हाँ, Yeah, there is this thing उनके जहन में है. He's seen some very strong women in his lives, and I हम्म, think he writes them. So, हम्म, but I think this time what he did with Zanab, he kind of softened her up a bit, हम्म. but maybe he didn't need to. I don't know. Yeah, Let's see. no, like I can understand a lady or I can understand a character, a very real character who has issues with gundas. And you know, like it's not that difficult to come up with that character in Karachi. Everybody's been robbed, everybody's been held at gunpoint, everybody's had some kind of traumatic robbery. I've had them, my family has had them. तो अगर मुझे कोई कहे कि यार आप जो है वो इस चीज के पर्टिकुलर बारे में इतना स्ट्रांगली क्यों फील करती हैं, मैंने या तो कोई कहानी ऐसी देखी है या मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया है। मतलब मेरे घर में एक दफा रॉबरी हो गई थी, Right. लाइव रॉबरी हुई थी मेरी अम्मी के साथ, और मेरा छोटा भाई बहुत छोटा था, सो आई हैव डकैती हुई थी। तो अगर कोई मुझसे डकैती के बारे में कोई ओपिनियन लेगा तो मेरा बहुत स्ट्रांग ओपिनियन होगा, लेकिन You know अगर why you want that? You know what your feeling is missing in that? You're not feeling
the connection to her, No, right? I'm not. You, Yeah, and what I think is that it's I mean it's brilliant of Yumna to do this with as much hmm, conviction as she can muster, which is what says so much about her as an actress because she's such a good actress, so she's able to hmm, like नहीं वो ऐसा है वैसा और बड़ी प्यारी भी लग रही है और बहुत इसमें. अच्छी लग रही है बिल्कुल बहुत है Hmm, ने बड़ा बहुत अच्छा उसको दिखाया है और उसकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी करवाई है बाल बाल सब बहुत अच्छे hmm, हैं घर पे भी वो खड़ी है इवन इन अ simplistic sort of a dress and if you notice this is like brilliance of Haisam if you notice the tones of her clothes hmm, they are always angelic it's white it's pinkish hmm, browns and she wears black and white because she sees the world as black and white and whereas Munna when before his colors are toned they're muted dark blue deep blue royal blue but then when he meets Zarnab it's orange socks and an orange shirt and the bright white contrast heavily contrast it's like I love the way that Haisam plays with color and he's really good with color. Have you noticed the color grading in the scenes? yeah, Right? I was about to come to that. Dark. Have you noticed the color in Zarnab's house? It's Oh yeah. bright, it's loving, it's warm, it's cozy, Hmm, it's inviting, it feels like a home. And then with Bal Munna's house or wherever he is in, it's always threadbare, and it shows hmm, the desolation in his life. I truly wish Khalil Saab had given some backstory to that, that how he was always alone. He's lived a very lonely life. So when he looks at Zarnab and he feels that hmm, connection, he is going to give up everything for that connection, you know? So I wish that was there. It would have made it so because I think that he did this in Pyare Afzal because he added hmm, that oppressive father, Hamza's father, and he hmm, added that flighty si behan who has a bit of a more altruistic nature. hmm. आयजा की जो बहन प्लेड बाय सना जावेद एट दैट टाइम सो यू नो मुझे लगता है कि अगर खलील साहब इसको थोड़ा सा वैसे ट्वीक कर देते तो बड़ा मजा आता और लेकिन इसके अलावा आई थिंक दैट इट्स स्टिल प्लीज आप और ट्वीक कर दें कोई चीज. हाँ ये भी बात है ना अच्छा हम लोग का कोई लिखते हैं तो हमारे ऊपर तो खड़े हो जाते हैं लोग कि आपने ये ठीक करें जरा इसको ये सजा खलील साहब को कौन बताए कौन कहे बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे तो ये तो So, but I feel that we needed more content per week, right? yeah. You look at the other shows, Rad, क्या उसका नाम है, Noor Jahan, all those top shows, right? They all have 2 episodes a week, and I think that works. That On a works okay to hook your audience because we are not getting the characters of Yumna Zadi's character. I'm not getting the feel of it, right? मुन्ने maybe को हम समझ गए, मुन्ने को हम समझ गए, right? फारिस जो है उसको भी मैं समझ गई सुहाई को भी अभी तक यमुना जो है ना उसकी समझ नहीं आई आई वांट टू रूट फॉर हर और मैं इसी बात पे मैं स्टैंड कल्चर पे आना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ये बात जब मैंने कही यार मुझे उस रोल में महविश हयात ज्यादा सूटेड लगती थी वो इसलिए क्योंकि खलील साहब क्लासिकली महविश हयात के लिए ही बना रहे थे और ऐसा किरदार जो हमने जब भी हुमायूं के साथ देखा दिल लगी में पंजाब नहीं जाऊंगी लंदन नहीं जाऊंगी हमने हुमायूं के साथ उसको देखा काफी अरसे से तो नेचुरली मेरा ये थॉट प्रोसेस था लेकिन ऑब्वियसली इट हैज नो बेयरिंग ऑन युमना नॉट बीइंग अ गुड एक्ट्रेस बैड एक्ट्रेस बट मेरे पीछे जैसे लोग पड़े आए हाय 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 और अभी भी अगर कोई यमुना के बारे में ऐसा और यमुना को मजे की बात ये और अफसोस की बात भी है कि यमुना की मैं वन ऑफ द फर्स्ट चीयर लीडर्स में से हूँ जब वो उल्लू बराए फरोख्त उन्होंने किया या इस तरह के उनके छोटे ड्रामे थे आप सफाई ना पेश करें आप नहीं मगर मैं ये कहना चाहती हूँ मैं ये ऑन रिकॉर्ड ये लोगों के साथ ना कोई पूरा नहीं उतर सकता करने दें आप ना वजाहते दें आई मीन यू आर अ गुड जर्नलिस्ट यू हैव बीन प्रेजिंग पीपल वेयर दे नीडेड एंड नॉट व्हेन दे डिडंट राइट ये ऐसे हैं जैसे कोई वो गुंडे हैं वो नहीं है घूम रहे हैं पेट्रोलिंग यू यूज द वर्ड पेट्रोलिंग भाई मेरा कई बार मूड खराब हो जाता है कोई एक सीन देख के तो मेरा दिल करता है यार ये इसने क्या किया तो जी गुंडियां आ जाती हैं डंडे लेके हाउ डेयर यू तुम्हें तो बात नहीं करनी चाहिए यू नॉट अ रियल जर्नलिस्ट वेल ओके मैं यू नो ना सुनो मेरी बात गो somewhere else yeah no my thing is that it's very sad because
मैंने हमेशा से उनको सपोर्ट किया, और उनकी फैंस ऐसा समझते हैं कि जैसे मेरा उनके साथ कोई वेंडेटा है, या मैं जाऊंगी और मैं उनको कोई डंडे मारूंगी जाके। भाई अस्तगफुरुल्लाह, मेरा काम ये नहीं है। और मेरा काम ही ये है कि अगर आपको कोई चीज दिख रही है, या आपको जो उसको रिव्यू करना है, या आपको इंटरव्यू करना है, तो आप वो सवाल पूछें, वो चीजें देखें जो कि आपके अवाम के जहन में आ रही हैं। अब इस यहाँ पे सोशल मीडिया पे, जैसे आपने बिल्कुल कहा कि सही कहा कि they are also annoyed with you. I mean, you know why they're annoyed with you because आपने हमारे खुदा फवाद खान को कुछ बोला, right? So हाँ also, हाँ। and I keep telling people कि माविश तो फैन होंगी जितनी मैं फैन हूँ फवाद खान की, कोई आप जम मेरे के से ज्यादा हैं, आप हमेशा से मेरे या से ज्यादा रही हैं मैं फवाद। मैं बहुत हुसन ट्रस्ट काइंड ऑफ पर्सन हूँ, गॉड मी, तो फवाद लाइक वॉकिंग गॉड स्टेटस with me, but I do get annoyed with him for certain things, and I reserve the right to say it, and हम्म everybody else can say it too. हम्म And I'm sure Fawad agrees with this as well. He's got a हम्म। lot of charm, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है. I just don't understand these women, oh, it's usually women, patrolling social media ना. अच्छा फलान ने बात कर दी थी, अच्छा फलान ने बात कर दी, इट्स द ट्रोल पेट्रोल। agree with you, you're wrong, ब्ला ब्ला ब्ला, बस नहीं गुंडों की तरह पड़ जाती हैं. देखिए, फवाद खान से तो मेरा मसला बड़ा ज्यादा सा है। मेरे ख्याल में फवाद खान, अली जफर, फहद मुस्तफ़ा, हमजा अली अब्बासी, फरहान सईद, अहद रजा मीर, बिलाल अशरफ, ये जो टॉप हमारे लड़के हैं जिनको हम देखते हैं, दानिश तैमूर वगैरह। आज का नाम लिया, किसका? वहाज का लिया. वहाज भी बिल्कुल, वहाज भी बिल्कुल हाँ. एब्सोल्युटली। लेकिन चलें, वहाज को अगर हम फवाद से कंपेयर ना करें, वहाज स्टिल मैं कहती हूँ ये वाली लॉट है। अहद भी चलें ये वाली लॉट है। चलें हम सीनियर्स को देख लेते हैं ना, फवाद को देख लें, अली जफर को देख लें, ये जो हमजा अली अब्बासी वाला लॉट है सारा। मैं ये कहती हूँ कि इनके पास बहुत बड़ा पावर है। देखें, ये जो लेट से उसामा है, जो नए लड़के आए हैं, या ये शुजा असद है, he cannot take his hands pick on scripts. Yeah, even Talha, who's very new, he's done what, 3 4 dramas. He cannot just say that I will do a film and who's going to produce it? Is it you? Is it you? Is it you? Who's coming? Come on. Do you have 10 crore rupees? Come, invest in me and I will get the money back. Right? No pun. Now, Fawad has that power. अली जफर हैज दैट पावर. हमजा अली अब्बासी हैज दैट पावर. ठीक है, ये वो 4 5 नाम मैं इसलिए ले रही हूँ, फवाद की स्पेशल बात कर लेते हैं चलें. मेरा मुद्दा ये है कि फवाद के पास वो पावर थी कि वो हैंड पिक्ड किसी प्रोड्यूसर के पास जाता, जो कि प्रोड्यूसर दे सकते हैं 10 12 करोड़ आप पे लगा सकते हैं. लगाया नहीं उन्होंने मनी बैक गारंटी में. इतनी टेरेबल स्क्रिप्ट, इतनी टेरेबल फिल्म थी वो. तो फवाद चाहे तो किसी के पास भी जाके कह सकता है कि सर आप मुझे पैसा दो, मैं फिल्म बनाऊंगा. आप जैसे हुमायूं ने किया. हुमायूं की बात मैं क्यों करती हूँ, या व्हाई डू आई एडमायर हिम सो मच? आई एडमायर हिम बिकॉज दिस इज व्हाट ही डिड. He was at a very good point in his career. He took a step back. He did productions. Now, I understand not everybody can do that. A lot of people want to stay in the front and not go at the back. He could have fronted films. And Fawad, if he would have fronted films, they would have helped Pakistani cinema, which it so desperately needed. Okay, I get, by the way, a fact. This is a fact. You can ask any actor, any director, any producer. A film is easier to shoot than a drama. Okay, and I remember he said somewhere that drama नहीं करना चाहता मैं. I understand that because उसके health issues भी हैं काफी. He's a diabetic man. So a drama will take somehow, maybe can take 4 months, 6 months. A film shooting is wrapped up in 45 days, and you have let's say another 20 to 30 days of promotion. So that's the entire amount of commitment you have to make for a film. Fawad should have done more films. Fawad is now shooting in Shandur for Sony Live. He did another series. Barzakh to chale purana hai, I won't hold that against him. But Shandur, he's shooting for Shandur. Really? Why? So as a fan, as somebody who believes in his ability to literally launch 1,000 ships, I truly believe in his ability to do that. And I've seen him, I've met him. He's a very nice man. I'm sure I don't know him very personally like I do some of the others. He's a very nice man. He's been an asset to Pakistan. But अगर आप He's been an asset. देखिए वो तो सब ठीक है, लेकिन टोपी तो सीधा कर लें. I remember that, right? So it's fine. We all know his good points, and he's charming. And when you meet him, you melt into a puddle because he is like that. He's gifted. He's a gifted human being.
we expected a little more help in the industry. That's all I'm saying. Because Sadaf, it's very easy. It's very easy to say no to all the people who are like थाली में लेके may I have some more like Oliver Twist. तो Oliver Twist को मना करना बहुत आसान है, लेकिन डैडी मनी बैग्स को मना करना ज्यादा मुश्किल काम है ना. एंड इंडिया के पे स्केल्स आर इनसेन. सो इफ ही इज, आई मीन ही इज प्रोबेबली गेटिंग मोर मनी फ्रॉम दोस दैट सीरीज देन ही प्रोबेबली वुड हैव मेड in a year or 2 years or 5 years in Pakistan. I can guarantee you that. I personally, my theory is that, he was flying high with Hamsafar, and then Ash came, and then what was that other disaster, Chashme Nam, and he got a lot of flack, and people were saying, koi Fawad Khan kuch nahi, that kind of thing, right? I mean, obviously, a lot of our other actors were made to feel insecure. So, he doesn't want to face that again. तो अपनी ब्रांड को वो टार्निश नहीं करना चाहते. और कुछ है गारंटी तो कर ली, वो तो इतनी कोई फजूल फिल्म थी, अल्लाह माफ करे. Yeah, I know, and this is what makes me laugh when I am told नहीं कोई स्क्रिप्ट नहीं है पाकिस्तान में, तो वो मनी बैक गारंटी कौन सी स्क्रिप्ट थी? नहीं, और स्क्रिप्ट चले, देखिए मेरी बात सुने सदफ, स्क्रिप्ट तो लिखवाई भी जा सकती है. तो जैसे लोग बैठ के किसी को बोलेंगे कि भाई मेरे जहन में ये आइडिया, तू लिख ड्रामा. तो वो माहिरा खान ने कर लिया, हमजा अली अब्बासी ने जाने जहां कर लिया, माहिरा खान ने हम कहाँ के सच्चे थे कर लिया, रजिया कर लिया, और एक छोटे से चैनल पे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे किया है उसने रजिया. तो what is stopping Fawad? And I will, if I ever meet him, I will ask him this question. I will not back down from this question because it is a valid, legitimate question as somebody. And I also feel like a lot of his समंदर पार, नॉट समंदर पार तो नहीं होंगे, बॉर्डर पार फैंस जो है ना, उनको ये चीज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनको नहीं पता ना कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को उसकी जरूरत क्यों थी. मैं उनसे ये सवाल तब करूं कि भाई मैं उनसे पूछूं कि अगर आप आज सोचें कि इकट्ठे 15 स्टार बॉलीवुड के रिटायर हो जाएं, शाहरुख खान ने 5 साल फिल्म नहीं की, लोगों से पूछते रहे ना कि आपने फिल्म क्यों नहीं की, आप फिल्म करें, आप फिल्म करें. जब वो डब्बे पे डब्बे फिल्में बना रहा था तो लोगों ने सवाल किया कि भाई व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई डिड यू चूज दिस स्क्रिप्ट. तो सवाल तो करना है, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों से, फवाद जैसे लोगों से जिनके पास मेंटल है इतनी बड़ी इंडस्ट्री को आगे लेके जाने का, और वो कर सकते थे. मेरा सारा दुख ही यही है कि वो कर सकता था और उसने नहीं किया. He chose not to do it. Okay, Mahwash, are you ready for the cup of hemlock जो इस सारे डायलॉग बोलने के बाद आपके लिए तैयार किए होंगे? वो क्योंकि एक्शन तो स्ट्रांग होगा, अब तो इतनी होंगी डायलॉग्स और कॉन्वर्सेशंस के आपकी क्रूअल्टीज और चले वहां तक तो पहुंचेगी, उनका कोई फैन उसको टैग करके स्टैंडर्ड्स, राइट? चलती लड़कियों ने कहना जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड जो है ना, ये मेरे जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स गए, आप लोगों ने खत्म कर दिए, वो चले गए, बस इतनी से तो होते हैं जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स कि कोई बंदा मुझे बोले वो खत्म हो जाए. I got accused in the mix as well, and I'm going to say my journalistic standards are cooling in the fridge, right? मैं कभी-कभी निकाल, कभी-कभी इस्तेमाल करती हूँ. No, I'm more of a blogger than a journalist. Mahwash is a journalist, right? And journalist का job यही होता है to ask uncomfortable questions. It's not to please you. And I'm not saying that I always ask the most. I'm not, some बेचारी वेरी हार्ड वर्किंग जर्नलिस्ट इन गाजा, मैं उनके से तो अपने आप को कंपेयर नहीं कर रही हूँ. वो है असल लोग वाकई, उनको, लेकिन उनको भी क्वेश्चन करते हैं लोग, उनसे भी सवाल करते हैं, उनको भी जज करते हैं. तो जज करने वालों का तो कोई मतलब एंड नहीं है. आप मुंह खोला और कोई बैठा है आपकी बात से. I have seen people question the journalists in Gaza. Yeah, so it will happen. So if you can question them, who am I? I'm nobody. Yeah, so you are somebody, Mahwash. ऐसी कोई बात नहीं. I'm nobody ना. I don't have any. नहीं हम I don't have any journalistic standards ना, तो I'm nobody. So yeah. नहीं but अल्लाह मियां हम सब से प्यार करता है. But randos on Twitter, they know. Then everybody. उनके standards हैं और वो सबको बताएंगे डंडा लेके. बस वो जिंदगी के साथ इस टाइप का कॉन्वर्सेशन चलते हैं. I hope because it's always girls. I hope कि थोड़ी सी मेच्योरिटी उनमें आए. I think they're just kids, and I think most of them are kids from India. I don't think they're Pakistani, because मैंने पाकिस्तान में कभी भी इस तरह का स्टैंड कल्चर नहीं देखा. सारी जिंदगी क्रिटिसाइज कर रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामों को, कभी नहीं देखे. होते हैं, आते हैं, हेटर्स भी होते हैं, लड़ाई भी करते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा.
इस तरह का कभी नहीं देखा। तो वहां पे है, क्योंकि मैं बॉलीवुड के लिए भी लिख चुकी हूँ, बात कर चुकी हूँ, मैंने बॉलीवुड को भी बहुत एक्सपीरियंस किया है। बॉलीवुड में ये कल्चर है, इस तरह का स्टैंड कल्चर, अटैक कल्चर, जत्था बना के अटैक करना, जत्था बना के कोट ट्वीट करना, नीचे रिप्लाईज में जाके फ्लड कर देना, डिसलाइक करना, कमेंट में जाके हर जगह जा जाके ये करना। ये इस तरह का एक मतलब जोम्बी कल्चर वहाँ है। एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में भी है, वहाँ पे मीडिया में भी है। चलो वोट दे दिया उनको, टाइम खेले। हाँ बस ठीक है, अब हम अपनी बात करते हैं। सो सदफ, एनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स फॉर व्हाट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, एंड इज देयर एनी अदर ड्रामा दैट you're like के हाँ यार ये आएगा तो देखेंगे, मजा आएगा? I am super excited for क्या उसका नाम, Haroon Kadwani, right? Because I want to see how far can you stretch bubblegum, na? कि भाई how far can you become Feroz Khan while Feroz Khan is also in the room? And I think huge compliment, right? But why not develop your own style? That's Actually, my Feroz, with all of his problems, Feroz was always talented, and he was yeah. not he was a bit of a nepo kid, like उसकी बहन काफी established actress थी, लेकिन फिरोज अपने बेसिस पे ही फिरोज बना है। बहुत मतलब बाद में लोग सोचते हैं कि ये हुमायूमा मलिक का भाई है, फिरोज अपने ओर पे फिरोज बना है और उसने अपनी ब्रांड खुद बनाई। Talent, he has other bad talents that are disgusting, fortunately. Yeah. And the thing is, लेकिन किसी के रोजी रोटी पे हम लोग लात नहीं मारते कि चलो it's sorted out between his wife. हारून करवानी की भी हम नहीं मार सकते ना, क्योंकि अल्लाह मियां उनको दे रहे हैं। Also, those kids survive on that money. वो बेटी भी और बेटा भी, right? They live on that money, so we don't touch that. लेकिन yeah, he may be a terrible human being, but he's a good actor. Now, मुझे back to my friend Haroon, right? I am waiting to see how far he can take this subterfuge and why he is doing this. That's all. That's a big question, because in an age where people are telling you, be yourself, why do you want to be Feroz Khan? Why do you want to be Danish? Yeah, and you're right. If he had explored his own talent somehow and his own identity, he may have found something. Yeah. Yeah, and I feel the same way for Xavier. I think he's being forced to act. मुझे ना अभिषेक बच्चन याद आता है, he was being forced to act as well, and it's cruel in a way, right? देखो, you are not competent to do something और बार बार आपको पब्लिक में लाया जाता है कि ये ना he is going to fix this, he is going to do this, और then उसका उठता है carrying his father's legacy, yeah, I mean sometimes people can't, right? तो sometimes people can. He's nowhere near नौकरी कर ले, कोई ऐसी बात नहीं। यार मतलब बेचारे को मैं तो नुमान साहब से गुजारिश करना चाहूंगी, अगर वो ये देख रहे हैं बाय सम चांस, के गिव द बॉय अ रेस्ट, लेट हिम रिटायर इन कनाडा with his life now. Give him the break he needs. प्रोड्यूसर ले, कुछ और कर ले, वकील है, I've heard he's a वकील, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए? So anyway, so that is our guy, Xavier. He needs a rest and we're willing to pay for it if necessary. But I think that what do you think of Rad before we go? I haven't been seeing it. I haven't seen Rad, and I've also heard good things about Jaan Se Pyara Johnny. So I've heard that both these dramas are very strong, and I want to maybe binge watch them at some point in time. But I do feel like Green TV has given a lot of these pushes to the other channels to try different things, which is why they're trying these kind of gripping and better written stories. And so I'm glad that there are good dramas, because बीच में मुझे लगता है सदफ एक ऐसा टाइम आया था, and I was like, यार, are there no good dramas out there right now? मतलब क्या हो रहा है? Rad has इतना satisfying drama है. The dramas we used to, where the plot was constructed, the acting, everything is flawless, and I'm going to congratulate Sanam Zaryab Mehdi. She has written an A1 drama. वो जो classics नहीं होती कि इंसान कहता है अच्छा जी वो रद जरूर आप देखना, right? अच्छा. Brilliant. But on the flip side, we have the Zanjabil Asim factory. तो सुबह होती है तो वो एक वो ना पेड़ा बना के ना रोटी नहीं ऐसे जैसे चलो फिर एक ड्रामा बन गया, फिर एक पेड़ा बनता है. I don't know. Maybe she has a team who's churning out one drama after the other. This is an artistic thing.
I mean, and I think, Look, जैसे I हक, don't mind if you have people writing, but then they deserve the credit. It should not go with right. you. It should not go with. If I'm training girls or boys to write dramas, and if it's their story, their drama, then they're going to write it. They're going to take the blame. It should not be on my name. I think it's very strange that if she, and I know a lot of other writers have done that. I'm not quite sure about her, but there are people who are doing that. So no, I'm not a big fan of that. I find it dishonest. And Sadaf, I'm looking forward to the movies that have come out, and there is a slew of movies that will come out. Mayu is doing three, and Myra is one of them. Is in one of them. Mirza Jat, I think, and Love Partner also. So he's announced that. So I'm looking forward to seeing Humayun. फहद मुस्तफा का ड्रामा आ रहा है, फरहत इश्तियाक ने लिखा है, कभी मैं कभी तुम. That's the name, right? Yes, it was. I think is originally the script was called Teri Meri Kahani. I'm Uh, not getting it. I'm not getting it so far. It's not yeah, me clicking. With, neither. yeah, एंड देन देयर इज I, ऑब्वियसली जो बचे हैं संग समेट लो. तो वो जितने लीक्स हैं फिलहाल तो हम सब वही समेट रहे हैं. क्या होगा? हाँ, आई नो यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग. सर वी नीड अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट. वी आर आउट ऑफ नहीं, टाइम आई फॉर दिस वन. ट्राइंग कुछ थेरेपी अपनी कराऊं, किसी वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊं कि मैं क्यों, मुझे इतनी जिद है. राइट, आई शुड गिव अप नाउ एंड से यस, बट ऑनेस्टली वी डिजर्व बेटर. बट चलो, अगर यही मिल रहा है तो Let's see. We'll do a discussion on. Let us know, guys. If you think that we should do a video on Jo Bache Hain Sang Samet Lo based on the information that we have, and discussing the novel itself and what we expect from the plot on Netflix, inshallah. We will hope to see it soon, I think. I mean, they've all been shooting for it for a very long time. So let's hope that it satisfies us and satisfies Sadaf and the inner angst she has about. look, I have a deep love for Farhat Ishtiyaq. I do. Yes, I know. I deeply adore her work. उनके एक एक ड्रामा मुझे पसंद है. मुझे सीन सामने से घूम रहे होते हैं. This is my little iffy now about the Fahad Mustafa and Badr Mahmood collaboration. क्योंकि like you could give Badr Mahmood सोने की थाल, and थोड़ी देर में it will be like what shall I say? It will look like aluminiums, and you'll say, how did that happen? He has a tendency to make everything very dark. Yeah, no, he has a tendency to make everything mediocre, right? You can give him a diamond, he will make it a crystal in 5 minutes, right? So he has some magic there. But for Farhat Ishtiyaq's sake, because she writes every drama with her heart, Yeah. right? So Yeah. That's like one drama a year or 2 years like this, yeah. yeah. फंसी हुई है तो, लेकिन चलो देखे. वी वांट JBSSL टू सक्सीड. पाकिस्तान का इंडस्ट्री है, सेम विद ऑल द अदर ड्रामास, वी वांट देम टू सक्सीड. ओके, खिलाफ नहीं है. खिलाफ तो कोई भी नहीं है, पर बिला वजह की लड़ाई कोई है नहीं, लेकिन फिर भी लड़ाई है. पता नहीं क्या मसला है. Anyway, thank you Sadaf for your time. We're out of time for this session, but let's talk about Jo Bache Hain Sang Samet Lo inshallah soon, and let's talk about our other dramas as well. Let us know what you guys are watching. Please avoid trolling, because this is just not fun anymore, and I don't have the energy to respond to everybody, really. यार मैंने कुछ कह देना किसी को ना, and then they'll then I'll be sorry. Yeah, then you take the heat, Sadaf, because सारी heat तो मेरे ऊपर ही रहती है हर वक्त 24 घंटे. Anyway, thank you guys. Thank you everyone for watching. Thank you Sadaf for your time and your remarks. Guys, don't forget to like, comment, share, subscribe. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.